المرسلين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما۔ اس پروگرام کے عالی وقار صدر نمونہ اسلام حضرت مولانا محمود الحسن صاحب گرولوی دامت برکاتہم العالیہ، مدرسے کے تمام اساتذہ اور بطور خاص مدرسہ اعلیٰ کے رہنما، ہم سب کے مخلص اور کرم فرما جناب مولانا عبدالحفیظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اسی طرح ہمارے اور مخلص جناب لال بابو صاحب، اور اس علاقے کے بڑے ہیں اور ملت کے بڑے ہیں مخلص اور ہمدرد حضرت مولانا شبلی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عزیز طلبہ اور پردے میں بیٹھی ہوئی ہماری ماں اور بہنیں، یہ وعظ اور تقریر کا موقع نہیں ہے، اصل میں ہم کو اور آپ کو اپنے بزرگ اکابر قوم ملت حضرت مولانا محمود الحسن صاحب سے ان کی ناصحانہ باتیں سننی ہیں، اس ارادے سے سننی ہے کہ انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے، اگر اخلاص کے ساتھ ان کی باتوں کو سنیں گے عمل کی نیت سے تو انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا، دنیا بھی بنے گی اور آپ کی آخرت بھی بنے گی انشاءاللہ۔ میں زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا، سب سے پہلے میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں عزیز طلبہ کو کہ تمام طلبہ نے کافی سنجیدگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اچھے لب و لہجے کے ساتھ، صحت مخارج کے ساتھ، صحت تلفظ کے ساتھ اپنے مفوضہ تمام امور کو انجام دیا۔ انہوں نے تقریر بھی پیش کی، شاندار اور لاجواب تقریر پیش کی، کلمات بھی سنائے تو الحمدللہ لاجواب سنایا، احادیث بھی سنایا لاجواب سنایا، اراکین سنائے لاجواب سنائے۔ تمام طلبہ قابل مبارکباد ہیں، اور یہی طلبہ ہیں جن کے بارے میں شاعر کہتا ہے یہی طفلان مکتب جن سے وابستہ ہے مستقبل، انہی ذروں کو چمکا کر شب مہتاب کرنا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو جامعہ عربیہ شیرامپور میں دارالاقامہ میں رہ کر یا روزانہ آ کر زانوِ تلمذ طے کر رہے ہیں، انشاءاللہ کل کو یہی بچے ملک کی بھی رہنمائی کریں گے، قوم کی بھی رہنمائی کریں گے اور پورے عالم کی رہنمائی کریں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے دلوں کے اندر مکاتب کی، مدارس کی عظمت اور اہمیت ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر مدارس کی عظمت نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے، مکتب کی اہمیت نہیں ہے تو ہمارے ایمان میں شک ہے۔ ایک بندہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی تعلیم دی جا رہی ہو اس جگہ سے محبت کرو، جو تعلیم دینے والے ہوں ان سے محبت کرے، جو پڑھنے والے ہوں ان سے محبت کرے۔ خدا نخواستہ اگر ہم نے ان پڑھنے والے طلبہ سے، پڑھانے والے اساتذہ سے اور پڑھائی جانے والی جگہوں سے
किसी किस्म का बोझ रखा तो खुदा की कसम अल्लाह के यहाँ पकड़ हो जाएगी। लिहाजा हमको अपने इरादतदारों से वालिहाना ताल्लुक होना चाहिए, इश्क होना चाहिए। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया था कि ऐ लोगों, तुम खुद आलिम बन जाओ, और आलिम नहीं बन सकते हो तो तालिब इल्म बन जाओ। अगर तालिब इल्म नहीं बन सकते तो आलिम के कलाम को सुनने वाले बन जाओ, और अगर तुम ये भी नहीं कर सकते तो अहले इल्म से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, और अगर तुम ये भी नहीं कर सकते तो पांचवे न बनो। पांचवे का मतलब उलमा को बुरा भला कहने वाले, हुफ्फाज को गरियाने वाले, कुर्रा को फुटान फुटान बोलने वाले, दीनी इदारों में पढ़ाने वाले, असातिज़ा किराम को की तौहीन करने वाले, ऐसा न बनो वरना तुम हलाक हो जाओगे। बहरहाल हमको आपसे यही कहना है कि ये इदारा आपका है, इस इदारे में आपका खून पसीना है, इस इदारे में इतने बच्चों ने इस इदारे से पढ़ा है और आगे की तालीम हासिल करने के लिए दूसरे इदारों में गए हैं। इस इदारे को आगे बढ़ाना, तरक्की देना, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम के लिए इस इदारे में भेजना, ये हमारे और आपके लिए नफ़े का सौदा है, घाटे का सौदा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दो मदरसे का जिक्र है। तारीख जब आप पढ़ेंगे, मैं मुख्तसर कह के खत्म कर दूंगा बात को, असल हमको नसीहत सुननी है हजरत की। तारीख की किताबों में, शेर की किताबों में मुअर्रिखीन ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के दो मदरसे का जिक्र किया है। मक्की दौर में एक मदरसा जिसको दारे अरकम कहा जाता है, और मदनी दौर में एक मदरसा जिसको सुफ़ा कहा जाता है। दारे अरकम के अंदर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होते थे। सहाबाए किराम जो कलमा पढ़ते थे, ईमान लाते थे, उनकी तालीम और तरबियत का इंतजाम दारे अरकम में होता था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहीं जाकर के इस्लाम लाए थे। हजरत हमजा वहीं पर जाकर के कलमा पढ़ा था, इस्लाम लाया था, और वहीं जाकर उनकी तरबियत हुई थी। हजरत अबू बकर ने वहीं इल्म हासिल किया था। तकरीबन 40 सहाबाए किराम ने मक्की दौर में दारे अरकम में, जो अरकम का घर था, उस घर में रह करके जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान सीखा, अखलाक सीखा, इल्म सीखा, जो अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतार रहा था। ये मदरसा जो दारे अरकम था, इस मदरसे में बाज़ाब्ता खाने पीने का कोई नज़म नहीं था। सारे लोग आते थे चुप चुपा करके, अपने घर खाते थे, पीते थे, मौका निकाल करके दारे अरकम में चले जाते थे और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल करते थे। 40 सहाबा तकरीबन। ये मक्की दौर का मदरसा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना चले गए, तो मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी से मुत्तसिल, अपने हुजरा मुबारका से मुत्तसिल आपने एक चबूतरा कायम किया। मस्जिद का फर्श नीचा था और चबूतरा ऊंचा था। चबूतरे का मतलब ही होता है ऊंची जगह, जमीन के लेवल से जो ऊंचा हिस्सा होता है वो चबूतरा होता है। तो वो चबूतरा कायम किया जिसको सुफ़ा कहा जाता है। जो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम इंतहाई गरीब मखलूकुल हाल थे, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे सहाबी, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं, डर नहीं, खाने पीने के कोई असबाब नहीं, ऐसे सहाबा, गरीब सहाबा उस सुफ़े पर पड़े रहते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सीखते थे, आयात सीखते थे, अहकाम सीखते थे, मसाइल सीखते थे, आपके अक़वाल को याद करते थे, आपके अफ़आल को याद करते थे, देखते थे और अमल करते थे। उस सुफ़ा चबूतरे पर पढ़ने वाले मुख्तलिफ औकात में मजमूई एतबार से सहाबाए किराम की कुल तादाद बाज़ ने 300 तक लिखी है और बाज़ ने 400 तक लिखी है। उस सुफ़ा मदरसे पर रहने वाले तलबा का इंतजाम
जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाम से किया करते थे, चंदे से किया करते थे। कोई लोग सदका निकालते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेज देते। उस सदका की चीज को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूफा वालों पर तकसीम कर दिया करते थे और आप खुद इसको इस्तेमाल नहीं करते थे। बहरहाल तो ये दुनिया के अंदर दोनों तरह के मदारिस पाए जाते हैं। बाज मदारिस वो हैं जिसमें खाने पीने का इंतजाम तालिब इल्म खुद करता है, ये दार आखिरत का नमूना है। और बाज मदारिस वो हैं जिनमें खाने पीने का इंतजाम इंतजामिया करती है, आवाम करती है, ये सूफा का नमूना है। अल्लाह का फजल है कि दार आखिरत के भी नमूने पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं और सूफा के भी नमूने पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं। पहले ये मदरसा जो यहाँ असातिज़ा थे, असातिज़ा पढ़ाते थे, उस्तादियाँ पढ़ाती थी और तलबा आते थे, अपने घर से खा पी करके आए और पढ़ा और पढ़ने के बाद अपने घर चले गए या एक टाइम खाना खाया। लेकिन साले गुज़श्ता इस मदरसे को सूफा की शक्ल दी गई, उसी चबूतरे की शक्ल दी गई और इंतजामिया ने बतौर खास जनाब मौलाना अब्दुल हफीज साहब दामद बरकातुहुल आलिया, अल्लाह उनकी जिंदगी में और सेहत में आफियत के साथ बरकत दे। वो हमेशा तकरीबन जब से हमारा उनसे ताल्लुक है 10-12 साल तो हो गया होगा, 10-12 साल से बार बार अपने इस जज्बे का इजहार किया करते थे कि यहाँ हिफ्ज़ के अच्छा क्लास कायम हो जाए, अच्छा दर्जा कायम हो जाए, नमूने की तालीम यहाँ हो जाए, इलाके की जरूरियात की तकमील का जरिया हमारा मदरसा बन जाए, अच्छे हुफ़ाज़ यहाँ से निकले। इस ताल्लुक से वो कूदते थे और अंदर से उनको तड़प रहती थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके इस कुढ़न को और उनके इस दर्द को सुना और साले गुज़श्ता जो इरादा 12-13 साल से चल रहा था, उस इरादे को अल्लाह ताला ने अमली शक्ल देने का मौका साले गुज़श्ता इनायत फरमा दिया। साले गुज़श्ता क्या, यही साल ना, इसी साल इनायत फरमा दिया और 6-7 महीना हुआ। अल्लाह के फजल से यहाँ सूफा वाली तालीम होने लगी, कुरान की तालीम यहाँ होने लगी, हिफ्ज़ की तालीम होने लगी, अहादीस याद कराया जाने लगा, बच्चे के लिए खाने पीने का इंतजाम किया जाने लगा, प्राइवेट तौर पर उस्ताद को बहाल किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम काविशों को कबूल फरमाए और आपसे इल्तिजा है कि इदारे से जुड़िए, इदारे आपकी पहचान हुआ करते हैं। मौलाना अब्दुल हफीज साहब आज हैं, कल नहीं रहेंगे और जो भी असातिज़ा यहाँ हैं आज हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन ये इदारा रहेगा और इस इदारा गांव की जरूरियात की तकमील का जरिया बनेगा और इलाके की जरूरियात की तकमील का जरिया बनेगा। इदारा और आगे बढ़ेगा और फैलेगा इंशाअल्लाह और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा और ता क़यामत ये इदारा चलता रहेगा और आपके दीनी जरूरियात की तकमील का जरिया बनता रहेगा। हजरत मौलाना वली रहमानी साहब कहा करते थे कि ऐ लोगों, कान खोल कर सुन लो, आपके मकानात, आपके कोठे, आपके बंगले, आपकी तिजारत, आपके मॉल, आपके शॉपिंग सेंटर, आपके बैंक बैलेंस, ये आपके शायर नहीं है, ये आपकी पहचान नहीं है। आपकी मसाजिद आपकी पहचान है, आपके इदारे आपकी पहचान है। आपके इदारे जितने ऊंचे होंगे, आपके मदारिस जितने मेयारी होंगे, आपके कॉलेजेस जितने अच्छे होंगे, आपकी यूनिवर्सिटियां जितनी अच्छी होंगी, उतने आप अच्छे होंगे, आपकी मिल्लत अच्छी होगी, आपकी कौम अच्छी होगी, आपके कौम के बच्चे अच्छे होंगे, आपकी नस्लें अच्छी होंगी। आप चले जाएंगे दुनिया से अपनी कहानी लेकर के, लेकिन आपके कायम करदा इदारे, आपके कायम करदा जामियात, आपके कायम करदा मदारिस इंशाअल्लाह आपके लिए सदक़े जारिया का तो सबब बनेंगे ही, लेकिन आपकी कौमी पहचान का और कौम मिल्लत के शायर का जरिया बनेंगे। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह को गए हुए जमाना गुजर गया, 100 से ज़ायद अरसा गुजर गया, लेकिन आज तक उनका नाम जिंदा है।
सर सैयद अहमद खान को गुजरे हुए 100 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जिंदा है और दारुल उलूम जिंदा है, सर सैयद भी जिंदा है और मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह भी जिंदा है। लिहाजा जो भी आदमी इदारा कायम करेगा उसको बढ़ाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उनके नाम को जिंदा रखेगा और अल्लाह तबारक व तआला उन पढ़ने वालों के सदके तुफैल में उनके दर्जात को बुलंद करता रहेगा। बहरहाल मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला यहाँ के असातिज़ा को इखलास के साथ काम करने की और जुहद मुसलसल के साथ काम कर रहे हैं मजीद मेहनत की तौफीक अता फरमाए और अवाम नास को इस इदारे से मोहब्बत पैदा फरमाए, उनके दिलों के अंदर इस इदारे के ताल्लुक से हमदर्दी पैदा फरमाए और ये तालीमी लौ जो जलाई गई है, जो शम्मा यहाँ जलाई गई है, इसकी रोशनी श्रीरामपुर के हर घर में पहुँचे, फतेहपुर के हर घर में पहुँचे, कुर्बो जवार की बस्तियों के हर घर में पहुँचे, बदरबन्ना कुटबन्ना के हर घर में पहुँचे। यही हमारी आरज़ू है, यही हमारी तमन्ना है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।